Hello, all. Welcome to the Avsar podcast. Yes, we have started our podcast journey and उसी के लिए आज हमारे पहले गेस्ट है सीए हेमंत बजाज, a passionate investor and a teacher. With an experience of over 20 years in the field of equity and private equity, उन्होंने आज हमारे साथ शेयर किया है अपना पर्सनल व्यू ऑन द बजट 2026। ये पॉडकास्ट उन लिसनर्स के लिए है जो चाहते हैं एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिटिकल एंड पॉलिसी ओवरव्यू एंड लैंडस्केप ऑफ इंडियन इकोनॉमिक मार्केट। इस पूरे पॉडकास्ट में आपको जानने मिलेगा कि कैसे हम डिकोड कर सकते हैं व्हाट द गवर्नमेंट इज एमिंग फॉर द इंडियन इकोनॉमी एंड हाउ कैन इंडियन इकोनॉमी रीच the very aspiring 2047 Amrit Kal with $30 trillion of economy. So let's straight jump into it and do take notes. बहुत काम आएंगे. Alright. So before we start with specific questions, if we can just थोड़ा सा discuss कर सकें कि what budget actually is and what does it imply as a most powerful tool of the government. Okay, so Jain, look, बजट के दो एस्पेक्ट होते हैं. Okay. डेमोक्रेसी में यू आर अकाउंटेबल टू द पीपल ऑफ इंडिया, राइट? Right. सो गवर्नमेंट बजट के थ्रू अपने साल भर के काम का ब्यौरा देते हैं कि कितना रेवेन्यू हुआ, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, कहाँ पे एक्सपेंडिचर हुआ, कहाँ पे कमी रही, कहाँ पे न्यू स्कीम्स लॉन्च हो रही है, पुरानी स्कीम्स का क्या लेखा जोखा जिसको हम बोलते हैं. Correct. सो वो एक अकाउंटेबिलिटी का एक स्टेटमेंट है. But from an economic point of view, budget is a very, very important statement for people of India and people who are outside India. And people का मतलब यहाँ पे institutions, government, big players having big money, any people, any person, any institute who are basically interested to come to India. Okay. So it's like a statement. Okay, what are the governments? What are the thoughts of the government? How do the government undertake the economic activity? What are the uncertainties the government wants to remove it? Okay. In that process, कई बार uncertainty और ज़्यादा बढ़ जाती है. But it is a part of the process. So budget is a very, very important statement not only for India or for the Indian people, Indian businesses, but for the foreign people also, the foreign investors also, because on this basis they get a clear idea about the vision of the economic vision of the country. Okay. Can we break this down with one simple example, maybe of कोई tax policy आई, उससे क्या ripple effect हुआ, जिससे decision making of businessmen या foreigners impact करती है? Okay, so let us take an example. Okay, the government has come up with a 20 years tax holiday Okay. for data center companies. Okay. So data center is something which is very much needed. Correct. And data being the new oil, as everybody says. Yes. तो अब foreign companies को like Google, Amazon, and Meta. Now, if they have a sister concern in India, so they can basically, they being the foreign companies, they can utilize this opportunity to establish businesses in India and take the benefit of this tax holidays, which is 2047 the tax holiday year, which is almost 25 years. Correct. शर्त ये है कि डेटा जो यूज होगा इन क्लाउड कंपनीज के ऊपर वो इंडियन डेटा सेंटर में होना चाहिए. Okay. सो नाउ यू सी के ये पूरे के पूरे सेक्टर को इतना बड़ा थ्रस्ट मिलने वाला है कि इट इज गोइंग टू बी अनइमेजिनेबल. आई विल गिव यू अ डेटा पॉइंट फॉर दिस. Okay. नाउ यूएस इज स्पेंडिंग $5 trillion More than India's GDP. more than India's GDP Okay. in AIs. Okay. और AI is completely dependent upon this digital infrastructure. Data center. Where the data is Oh, stored and without processed. that you cannot work actually. Correct. So imagine the kind of impact that it is going to create in India. और
इसी के लिए आपने बीच में सुना भी होगा कि गूगल इज कमिंग अप विद 80,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन इंडिया. वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेटा सेंटर इज बीइंग डेवलप्ड बाय गूगल अमेरिका के बाहर इन इंडिया. So these are certain tax policies which are going to impact economic activity and business activity like anything. And I see this as a very, very positive statement by the government. Okay. So now we have that set aside कि भाई budget to every stakeholder creates a certain kind of impact. जिसमें अपन एक example लिया था foreign investors का with regards to data centers. Right. जो 20 years का tax holiday in 2026 गवर्नमेंट ने इशू किया है towards the अमृत 2027 अमृत काल momentum. So now moving ahead, what is your take on this entire 2026 budget? What is one single key theme जो आपको ऐसा लग रहा है that resonated the most with you? देखो मेरा थोड़ा आंसर इसमें ना थोड़ा सा फिलोसॉफिकल रहेगा, बट आई थिंक जो मेरी भावना है या जो मेरे भाव है वो आप तक पहुंच जाए और आपके व्यूअर्स तक पहुंच जाए. आई सी दिस एज राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जो मेहनत करेगा. मेरे लिए यही की टेक अवे है इन 2026 में. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई. Sure. 2025 गवर्नमेंट डिड गिव 12 लाख रुपए तक की ऑलरेडी गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स में छूट दे दी थी. सो आप एक फैमिली में देखिए, अगर 4 लोगों की फैमिली है तो 12 लाख इज मल्टीप्लाई बाय 4 इज 48 लाख इज you will be tax free if you plan it in that way. So you will be tax free. इंडिया का जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इज 6 lakhs. So you are way above that. Correct. Second, because of this change, there is 80,000 rupees which is being saved by the Indian middle class. Okay. On an average. On an average. Human or family? Single person? No, on a in an individual. Individual. Individually it saves is 80,000 rupees in taxes. In taxes. Correct. Secondly, government before this Diwali, government ने अपना GST में भी जो rationalization करना था वो कर दिया. Correct. So basically ये दोनों ही चीज से हो क्या रहा है कि गवर्नमेंट ने क्लियर इंडिकेशन ये दिया कि इंक्रीज कंजम्पशन. Because when the consumption increases, again new goods will be bought, new goods will be sold, and there will be new factories, greater demand, and economic activity works that way. Sure. So from being a saver economy, you can say, to the government wants us to become a consumer. Okay. That is, I think, being reflected in the recent data released by Economic Survey. That हमारे GDP का 60% से ज़्यादा is contributed by private final consumption expenditure. Absolutely. So Okay. now, and this is a new norm. Basically, this is what is followed by the likes of America, USA, UK, Japan, Europe as whole. So all the developed countries have followed this. So now, किसके पास में कमान है? कौन है सारथी? The Sarthis are the people of India who are expensive. Sure. What the government now is trying to do, government is just developing enabling schemes. Okay. Government wants to be an enabler now. वैसे भी government का there is no business to be in business. तो अब क्या है, government is just targeting on अवसर, and who are going to take that अवसर, who are going to capitalize that अवसर will be the people who will be राजा or the king. So यहाँ पे राजा और किंग का मेरा मतलब ये नहीं है मोनार्की या ये मत समझना. मेरा मतलब ये है कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की बात कर रहा हूँ, नॉट इवन जस्ट वेल्थ, बट आई एम टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी. द पर्सन हु विल बी एबल टू सी or foresee rather these economic steps by the government, the people who will be able to harness these steps, who will be taking the benefits of these government initiatives, government direction. अवसर सभी के लिए एक जैसे. Correct. So कौन जीतेगा या कौन इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में आगे आएगा? वो लोग आगे आएंगे जो लोग मेहनत करेंगे, जो लोग फोर्सी करेंगे,
और जो लोग कुछ अलग करने की चाह रखें. So this is my biggest takeaway from this. And if you see the whole speech also, युवा शक्ति पे ही बहुत बल दिया गया. Because Yes. now government के पास में भी यार कोई दूसरे रिसोर्सेज बचे नहीं है. एक जगह इनकम टैक्स कट दे दिया, एक जगह जीएसटी कट दे दिया. तो गवर्नमेंट फॉर अ फिस्कल प्रूडेंस यू हैव टू बी अलाइंड विथ व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू. आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया तब तक तो ठीक है. अब आमदनी अठन्नी खर्चा 2 रुपया 3 रुपया, तो ऐसा ना हो जाए कि आप एक लिमिट के बाहर आपकी स्पेंडिंग्स चली जाए कि जहां पे यू आर फेस्ड विद सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स. दिस इज व्हाट वी आर सीइंग इन मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. Yes. सो आई थिंक अवसर इतने ज्यादा मिलने वाले हैं बिकॉज अब गवर्नमेंट खुद तो कुछ करेगा नहीं. जो टैक्स कट्स देने हैं वो दे दिए. नाउ इट हैज टू जस्ट गिव द डायरेक्शंस. So basically, you can say this that the government has one major job to govern. या उसके अंदर they have to provide security. राइट That is sorted. We Right. trust the current government that they can keep this generation secure. राइट The second is enabling राइट economic, ऐसे बोल सकते हैं bottlenecks, Correct. उसको खोलना जिसमें inflation control हो गया. राइट That we have achieved. Right. The economic survey says that 1.7% का अपना headline CPI कहीं पे है. करेक्ट Right? And then second part is enabling tax cuts. जो आपने बोला जो GST में भी हुआ है and direct tax में भी हुआ है, which will impact the middle class essentially. Right? जो शायद 5 लाख की इनकम ऊपर होते ही टैक्स के लिए लायबल हो जाते थे in the earlier regime. Now they can save up to, as you said, 80,000 rupees. And the third that was very important जो मैं समझ पाया कि अब गवर्नमेंट ने अपना काम कर दिया है. Now it is on the baton is on the youth जो essentially Absolutely. demographically सबसे strong और numbers में भी majority पे है. करेक्ट करेक्ट Right now, the government is just hoping that this youth provides dividend to the economy and करेक्ट the Correct. growth of India. करेक्ट. Okay. So you have already seen that because this government and this budget is saying so much about education, about upskilling. Yes. Now education से upskilling की बात कर रहे हैं. अगर हम वो उसको समझने जाए तो कहीं ना कहीं वो डायरेक्शन ही है कि भाई जो लोग एजुकेशन में ठीक है लेकिन इस तरह के स्किल्स एक्वायर कर रहे हैं, स्किल बेस्ड इकोनॉमी में जा रहे हैं. Now those people will be able to benefit out of the initiative what the government is taking. And I see this in a very very positive side. I do not have any complaints. देखिए अगर किसी ने भी अगर ये एक्सपेक्टेशन रखी थी कि इनकम टैक्स में छूट मिलेगी या जीएसटी की छूट मिलेगी, तो सही बताऊं वो एक गलत एक्सपेक्टेशन थी फ्रॉम दिस. Because कर चुकी है वो सरकार. It has already been done and dusted. Let's move on to the next thing. Correct. And this has to be there. As a financial person, आप कितना मांग लेंगे यार गवर्नमेंट से? सो गवर्नमेंट अगर आपके लिए प्रॉपर अवसर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, बेसिकली काम तो वही है गवर्नमेंट का. और जो 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 इकोनॉमी है वो कैसे रन करती है, यू नो दिस के जिन लोगों के पास मतलब द पीपल और द पर्सन हु इज एबल टू यूज द कैपिटल इन अ बेटर वे, द कैपिटल शुड बी गिवन टू देम. और रादर आई से द इकोनॉमिक बेनिफिट अवसर should automatically be go to. So it all boils down to the old saying, जो कैपिटल को optimally utilize कर रहा है वही डिविडेंड उसका रीप करेगा. Correct. बट इसमें सर मेरे को एक थोड़ा सा सवाल था that as you said that the population was expecting more rate cuts in form of tariffs बोलो या GST बोलो या direct tax बोलो, मे बी वो आदत शायद इसी गवर्नमेंट ने डाला है थ्रू स्टेट इलेक्शंस एंड फ्रीबीज दैट दे गिव ड्यूरिंग दोस स्टेट इलेक्शंस. सो मे बी एक्सपेक्टेशंस वहीं से आ रही है. सो उस पे कुछ देखिए आपने एक्चुअली बहुत सही बात बोली, ठीक है. लेकिन देखिए टू रिमेन इन पावर गवर्नमेंट हैज सम कंपल्शंस. नो देयर इज नो वे आउट फॉर द गवर्नमेंट. एंड यू सी द पॉलिटिकल सिनेरियो आल्सो ऑफ इंडिया from a non-transactional benefits, what they were earlier doing by announcing railways projects, rails which were
not at all implemented for years, Correct. right? Now, increasingly the political party or the political scenario of India is getting transactional. So we have schemes which provide transactional benefit to the people of India or to the voters. I mean, I am to be honest, this is something like यार पावर में रहना रहेगा तो कुछ तो करना है. अब उसके लिए अगर 4-5 साल में एक बार कर लिया गवर्नमेंट ने और सिर्फ अगर यही करती, समझिए डिफरेंस क्या है, सिर्फ अगर यही करती तो गवर्नमेंट की गलती थी. 4 साल तो यार काम कर ही नहीं. अच्छा, मैं इसको एक और तरीके से देखता हूँ. लेट्स से कि द गवर्नमेंट गिव 2000 रुपीस की जो किस्त दी थी फॉर द इलेक्शन, सो ऑलमोस्ट 60,000 crores have went into that. So देखिए अल्टीमेटली ये जो पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, एक तो जैम के बाद जन आधार एंड मोबाइल, सो ये जो जैम ट्रिनिटी आई उससे एटलीस्ट ये जो पैसे जा रहे हैं वो एक नीडी को जा रहे हैं. ग्रेटर पार्ट ऑफ इट एटलीस्ट व्हाट आई सी. अच्छा, दूसरी बात है कि अल्टीमेटली अगर किसी के पास में अगर बैंक अकाउंट में पैसा जा रहा है तो घूम के तो वो इकोनॉमी में आएगा, किसी भी फॉर्म में, कंजम्पशन के फॉर्म में, बीबीपी के फॉर्म में, व्हाटएवर, बट अल्टीमेटली इट इज कमिंग बैक इन द सिस्टम. सो मुझे ये लगता है कि ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि सही है, और देखिए ये भी युवा शक्ति को तो सही करना है. आप मुझे बताइए कि आज जो गर्ल्स which are who are let's say 21, 22 now, when they will be eligible for let's say लाडली बहन योजना, तो गवर्नमेंट को क्या वो लेंगे लाडली बहन योजना का अपॉर्चुनिटी बेनिफिट या नहीं लेंगे? वो उनके सेल्फ रिस्पेक्ट या उनके सोर्सेज या उनके स्वाभिमान पे डिपेंड करेगा. देखिए जो ले रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गलत है, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि अगर वो लोग उन लोगों को अगर नीड है तो दे शुड टेक इट, नॉट अ प्रॉब्लम. इसमें मैं एक और जस्ट लास्ट बात करता हूँ देन कि देखिए गवर्नमेंट की ये जो बेनिफिट्स हैं, जैसे हमें वोटिंग में नेटो मिलता है, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की बेनिफिट्स में भी एक सिस्टम डालना चाहिए कि दोज हू डोंट वांट टू दे आर एलिजिबल बट दे डोंट वांट टू ऑप्ट फॉर, वहां पे रिकॉर्ड होना चाहिए. See, I think that is where Indian mindset fails. I think कि भाई जैसे most of these schemes में if we go तो वही ज़्यादा benefit ले रहा है जिसको नीड नहीं है. Correct. And the current government tried to do this with gas subsidies, I think, and a lot of people did give their gas subsidies. They did choose कि भाई हमें नहीं चाहिए. I think similar emotional campaign must be run by the current government so that more and more people come and contribute positively by not opting to take This benefits. was even done for senior citizens benefits Yes. in railways, and Yes. many people have given up on it. मतलब now you have to select whether you want a concession or not, and many people consciously do not select that concession. So hopefully शायद हमारी बात आपके द्वारा वहाँ तक पहुँचे और गवर्नमेंट इसके बारे में We hope so because जितना भी money actually जहाँ पे capital creation में जाएगा rather than just being free available for consumption purposes without creating any asset, वो ज़्यादा better रहेगा कि भाई flow हो money. Okay, so capital creation से मेरे को next ये थोड़ा सा समझ में आ रहा था सर कि government has proposed 12.3 lakh crore जैसा कुछ capital expenditure capex which was last year somewhere around 11 crores, right? 11 का number last year था, right? So 12.3 lakh crore is a huge number, right? Needed number, but do we have a major problem वहाँ पे जहाँ पे ये पैसा actually trickle down होके use नहीं हो पा रहा है? For example, अगर हम asset monetization की बात करें तो the target was 60,000 crores, but it was somewhere around 33,000 crore पे भी वो रहेगा ही disinvestment वाला target. Right. Similarly, execution में अगर अपन close to home देखें bullet train project, still we see that it is very distant. Correct. या फिर talk about Mysore metro,
right? 2026 दिसंबर का टारगेट था, 2025 दिसंबर, which has been shifted to December 2027. राइट। तो ये जो bottlenecks है जहाँ पे गवर्नमेंट की इंटेंट समझ में आ गई है, they want to do the right thing, but it is not getting executed very well. So how can we improve there, या how can government take certain initiatives to get that aspect of it? देखिए मेरे हम्बल एक्सपीरियंस में मेरे को जब भी ऐसा समझ में आया कि गवर्नमेंट मशीनरी से काम निकालना बहुत आसान बात नहीं है। It's a very very difficult job. I have been into practice also for quite a long years of my life. And मतलब वो बेसिक वो इंटेंट ही नहीं है। तो मैं ये बोलूँगा कि वो काम नहीं करते, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि जिस स्पीड से एग्जीक्यूशन की बात कर रहे हो वहाँ पे देखिए त्रुटि होती है। और मैं आपको बताऊँ, देखिए कुछ कमियाँ जो है गवर्नमेंट मशीनरी की होगी, कुछ कमियाँ इंडियन लोगों में भी हैं, जो लोग अपने स्वार्थ के लिए ऐसे प्रोजेक्ट्स को आगे नहीं भी लाने देते। I will tell you, देखिए सरदार सरोवर डैम कब चालू हुआ? Very classic example. It's a classic example. Now, जो मुंबई मेट्रो बना एयरवे से, जो कितना कंट्रोवर्सी। देखिए ये गवर्नमेंट ने ना बहुत कुछ चीजें बहुत सही की है। They have tried to do some plug and play kind of things. आपको पहले से सारी परमिशंस मिली हुई है, now you just have to go and plug and play. लेकिन यार हम सूरत मेट्रो की बात करें तो सूरत मेट्रो में भी यू सी फ्रॉम वेयर इट इज स्टार्टिंग एंड वेयर इट इज एंडिंग, देयर आर practically many challenges, not only in hardcore execution but legalities भी बहुत आ जाती है। सबसे बड़ा बॉटलनेक है लैंड एक्वायर करना। उसमें 100 लोगों ने हाँ बोल दिया, एक बंदे ने हाँ बोला, तो भी वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट गेट स्टॉल्ड एंड then you overrun the cost and what not. In the court cases go on. Court cases go on. So कहीं ना कहीं यार क्या है कि I am of the view कि this government has done a very phenomenal job by bringing the PM Gati Shakti. Now PM Gati Shakti योजना जो है, आप देखो कि if you go through the website, if you go through the text and if you go through के वो actually करना क्या चाहते हैं, तो PMO is basically monitoring all the important projects across India. But ultimately इतना बड़ा लैंड मतलब लैंड ब्रेथ का कंट्री है इंडिया कि यार हर जगह पे वही स्पीड अज्यूम करना शायद बहुत मुश्किल है। देखिए हम सपोज बात करते हैं कि लेट्स से कि नो डाउट सूरत का जो मेट्रो है या जो बुलेट ट्रेन है वो शायद प्रोजेक्ट जिस गति से चलना चाहिए था उस गति से नहीं चला, लेकिन एट द सेम टाइम कैन वी सी दैट रिन्यूएबल्स में गवर्नमेंट हैज बीन फैंटास्टिक, अमेजिंग एग्जीक्यूशन, अनबिलीवेबल, व्हिच इज नॉट हर्ड ऑफ। मतलब 3 साल में मतलब हमने without any हमारे पास में कोई कैपेबिलिटी नहीं थी, now we are already across 125 gigawatts. This is amazing capability of the government, right? Meaning not कि government खुद आके फैक्ट्री चलाता है, but right policy framework है, right push है। तो मुझे लगता है कि देखिए मतलब how I see is on the positive side of what we aspire to, and there will always be these shortcomings. We have to keep on growing with that, keep on resolving that, and keep on coming back. एक चीज मैं आपको बहुत क्लियरली बोलूँगा कि आप मैं सिर्फ ये गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, बट गवर्नमेंट एज सच, देखिए ये गवर्नमेंट के साथ में एक चीज बहुत अच्छी हुई 2014 से 2019 तक तो शायद हो सकता है कि ये गवर्नमेंट के पास में भी उतने रिसोर्सेज डेवलप नहीं हुए, लेकिन पिछले 5 साल में जो रिसोर्सेज का एकदम अचानक से जो आफ्टर जीएसटी पर्टिकुलर में तो गवर्नमेंट ने 2 लाख करोड़ का मंथली रेवेन्यूज आने लग गए, करेक्ट? तो गवर्नमेंट के पास में पैसा है, अब पैसा आया तो आप नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स देखिए, फ्यू
few hundred say, which are more than now 600. More than 600 routes have been already approved by the government. ठीक है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए कंट्री के लेंथ एंड ब्रेड्थ पे, आप किसी भी जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर देखिएगा, आपको जो रोड कनेक्टिविटी है, गुजरात जैसे शहर में तो ठीक है, देखिए हमें गुजरात जैसे स्टेट में तो हमें देखने को ही मिलता है, लेकिन आप दूसरे सिटीज में जाइए, दूसरे स्टेट्स में जाइए, यू विल सी कि दिस इज फिनोमिनल, मतलब गवर्नमेंट हैज कम अ लॉन्ग वे, क्या रोड्स बनी हैं यार। मैं गुजरात में ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ, आई विल टेल यू, सूरत के जस्ट बाहर से एक सिंगल स्ट्रेच रोड बनी है 70 किलोमीटर टिल बड़ौदा। दिस इज गोइंग, मतलब दिस इज गोइंग क्रेजी यार, कि हमें कहीं मुड़ने की जरूरत नहीं पड़ी हमारा स्टेट, हमारा स्टेट। सो इस तरह की चीजें हो रही है। आप सोचो कि ड्यूरिंग दैट टाइम, मतलब वो लैंड बनाने में कितने किसान आए होंगे, कितने लोग आए होंगे, कितने प्रॉब्लम्स आए होंगे, लैंड एक्विजिशन कितने प्रॉब्लम्स में गवर्नमेंट ने झेला होगा, तब जाके गवर्नमेंट को बनाना पड़ा। तो ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स विल बी देयर, हो सकता है कुछ शॉर्टकमिंग्स भी हो, लेकिन आज हम वंदे भारत भी देख रहे हैं, ट्रेन कंप्लीटली चेंज्ड द एक्सपीरियंस। यू कैन से रेलवे स्टेशंस का भी मैं आने वाले 10-15 सालों में देखूंगा, मतलब अपने एटलीस्ट हम सूरत की बात कर सकते हैं, थिंग्स विल चेंज, एस्केलेटर्स मुझे नहीं लग रहा है, सब जगह पैसा लगता है, पॉपुलेशन इतना बड़ा है, पूरे पॉपुलेशन को चलाना भी तो मुझे लगता है कि ठीक है कमियां हैं, लेकिन लेट्स सी ऑन द पॉजिटिव साइड दैट यस गवर्नमेंट We can say that the intent is right. या एंड एग्जीक्यूशन में शायद कोई भी होता प्रॉब्लम्स रहती थी, राइट। एक सिंपल सा बिजनेस स्टार्ट करने में ही प्राइवेट सेक्टर को कितने एग्जीक्यूशन डीलेज होते हैं। यस, सो विद दिस केपेक्स द गवर्नमेंट इज प्रपोजिंग, राइट, आप उसमें से कैसे समझ रहे हैं कि आपको कितना कॉन्फिडेंस दे रहा है वो एज एन इन्वेस्टर टू बेट ऑन इंडियन मार्केट एंड इंडियन बिजनेसेस, द प्राइवेट सेक्टर गोइंग इन, हाउ विल दैट बेनिफिट डायरेक्टली? देखिए एक चीज पक्की है कि जो मेरे को एकदम क्लियरली दिख रहा है कि गवर्नमेंट के आने की वजह से प्राइवेट केपेक्स को कॉन्फिडेंस मिलता है। अगर 12 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट अगर नहीं स्पेंड कर रही है, अब देखिए गवर्नमेंट से वही नहीं है, अगर हम थोड़ा सा और इस बजट को समझने की कोशिश करें, जहां पे भी लगता था कि पीपल विल फेस लिटिगेशंस को इजी करने का काम किया गवर्नमेंट ने सेफ हार्बर रूल्स दिए, या आप मतलब डेटा सेंटर की जो हमने बात किया 15% ऑफ द टोटल कॉस्ट आप उतना डिक्लेयर यहाँ पे कर दो, नो क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, you can carry you can implement this safe harbor rule for 5 years। तो डेटा सेंटर से जुड़ी हुई और भी काफी सारी आईटी सर्विसेज जिसमें ये अप्लाई हो रहा है, तो गवर्नमेंट इज गिविंग सर्टेनिटी, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रिजॉल्व द इश्यूज जो पेंडिंग लिटिगेशंस है। देखिए 115BE करके एक सेक्शन है जहाँ पे ब्लैक मनी के लिए भी गवर्नमेंट पहले कलेक्ट करता था 78%, गवर्नमेंट ने वो भी रिड्यूस किया। 78% इज रियली अ वेरी बिग पेनल्टी फॉर ऑन अ पर्सन, ठीक है नॉन डूअर्स है, लेकिन देखिए इंक्रीजिंगली क्या होगा, जैसे जैसे गवर्नमेंट ने अपने टैक्सेस कम किए हैं, टॉकिंग अबाउट कंपनीज पर्टिकुलरली कम किए हैं टैक्सेस, वहाँ पे कहीं ना कहीं, और अब तो 12.5 लाख की छूट भी है, 12 लाख की 12.5 लाख फॉर द 50,000 फॉर द एडिशनल बेनिफिट टू द, तो ये सारी चीजें अगर आप क्यूमुलेटिवली देखेंगे तो गवर्नमेंट का जो इंटेंशन है और जो कमिटमेंट है और 12-12.5 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है, उससे दो चीजें बहुत क्लियर होने वाली है कि राइट डायरेक्शन में पैसा भी जाएगा और प्राइवेट केपेक्स आने लग जाएगा। सोलार में जो तेजी बना 2021 के बाद, दिस इज जस्ट बिकॉज़ कि गवर्नमेंट हैड राइट पॉलिसी फ्रेमवर्क, गवर्नमेंट ने उतने ही मतलब उतनी स्पीड से गवर्नमेंट ने भी काम किया, चाहे वो ट्रांसमिशन लाइन्स लो, चाहे वो फंडिंग लो, पीएफसी से जो फंडिंग मिल रही है और ग्रिड से जो फंडिंग मिल रही है, these are मतलब there is not a single file, मतलब मेरे को किसी मेरे फ्रेंड्स ने बताया था, those who are in solar, ये सोलार में the government is so receptive, renewables में the government is so receptive कि you go there, you ask for help and they will provide you the help।
तो दिस इज व्हाट वी आर सीइंग एज अ गवर्नमेंट। तो एक तरफ हम नॉन एग्जीक्यूशन की भी बात कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे एग्जीक्यूशन है गवर्नमेंट पीछे पड़ रहा है, वहाँ पे हार्ड सेलिंग चल रहा है। तो ये जो 12.5 लाख है, ये डेफिनेटली देखिए मल्टीप्लायर इफेक्ट है। यू ऑलरेडी नो दिस राइट, 4x 5x का मल्टीप्लायर इफेक्ट, इट्स ह्यूज नंबर ऑन एन इकोनॉमी ऑफ 450 लाख करोड़। 60 लाख करोड़ का जो मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा 60 लाख करोड़ का, दिस विल बी रियली। और प्राइवेट कैपेक्स की भी हमने अभी तक बात नहीं की। सो आई सी दिस इन अ वेरी पॉजिटिव वे अगेन। और कहीं ना कहीं ये जो कमिटमेंट है ये भी दर्शाता है कि हम इंक्रीजिंगली थोड़ा थोड़ा करेंगे, इंक्रीजिंगली थोड़ा थोड़ा करेंगे। लेकिन देखिए अब टैक्सेस रिड्यूस करने का कोई ऑप्शनलिटी है नहीं गवर्नमेंट के पास। तो अब टैक्स बेस बढ़ाना है, वो कैसे बढ़ाएगा? अचानक से तो कुछ नहीं होता, अचानक से इट विल टेक टाइम। हमने 2014 से 2025 तक कितना बड़ा चेंज देखा है, वो आप जब 2014 के बारे में सोचेंगे तब आपको और समझ में आएगा कि यस वी हैव कम अलोंग। एंड आई एम टेलिंग यू दिस, आने वाले 2047, सो 2047 में लगभग 21 years you will see economic prosperity like never before for every every person, those who are मेहनती provided, आपको मेहनत कर, विदाउट मेहनत ये गवर्नमेंट क्या इकोनॉमिक साइकिल ही नहीं थी, आपको मिलेगा ही। तो आज से पहले आपने क्यों हम लोगों ने क्यों नहीं सुना कि जोमेटो है, स्विगी है, इनके जो प्रमोटर्स हैं they have made tons lakhs of 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, मोर देन 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है जोमेटो का। listing to Nifty part is very short for Zomato. करेक्ट। सो देखिए नए जो बिजनेस भी तो आए हैं ना, टाटा और अंबानी की जो हम बात करेंगे, रिलायंस की, वो तो हमेशा से है, बिरलास हमेशा से है, दे विल बी डेफिनेटली अडानी, दे विल बी फोरफ्रंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। लेकिन नए अवसर भी तो क्रिएट हो रहे हैं, इस तरह के जो बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, प्रमोटर्स, दे आर गोइंग लाइक एनीथिंग। एंड इसका सबसे बड़ा रीसेट क्या मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी और तेज हो सकता है। देखिए आज से ना 5 साल पहले तक शायद अगर कोई फेल होता था, फेलियर वाज अ वेरी बिग टैबू इन इंडियन सोसाइटी, Failure was fraud. अब एटलीस्ट कुछ सेक्शंस में these things are changing। और मैं बताऊं कि सिलिकॉन वैली अगर आज इतना सक्सेसफुल है, और वो अगर आज R&D में इतना सब कुछ कर रहा है, जहाँ पे वो वर्ल्ड की टॉप 5 कंपनीज आर फ्रॉम सिलिकॉन वैली, दिस इज जस्ट बिकॉज दे हैव अ कल्चर, they have a culture where failures are accepted in the society, you are not threatened। यार वहाँ का जो प्रेसिडेंट है उसने अपना बैंकरप्सी किया हुआ है कितनी कंपनियों को लेके, और इंडिया में एक्चुअली बहुत बड़ा टैबू बना के रखा है इसको। हाँ, unless you have not done anything wrong, it is fine। If there are wrong things, then But normally, if I attempt a business and I fail, correct, we need to develop a culture in the society जहाँ पे we are not penalized for that. We are actually celebrated if you learn something. Now you can take on another thing more efficiently. Absolutely। So I think ये सारी चीजें जो चेंज हो रही है ना, आने वाले सालों में अपने को बहुत बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। अमृत का जो नाम दिया है ना, ये एक्चुअली बहुत सही है। अलाइन, जो बंदा इससे अलाइन हो जाएगा ना, he will do really very good as far as the economic prosperity। But so, मतलब the confidence you have on the future of India, do you think that it is very much possible for us to reach $30 trillion by 2047? देखिए मैं बोलता हूँ चलिए $30 trillion नहीं भी पहुँचे, लेट्स से हम $10 trillion, ठीक है, $10 trillion is also a very big number। We are talking about the Indian economy getting developed. Forget about the company. The entire economy. The entire economy is going to be developed। और उसके लिए तो हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। 7% से ग्रो करते रहो, 8 साल में आपका डबल हो जाओगा, देखा जाए। बट द
the quantum is, let's say आज हम 450 लाख करोड़ का मार्केट है, 450 लाख करोड़ और ऐड होने वाला, हाउ मच आपका बकेट कितना भर लेगा इसमें से? क्या इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में से आप अपने लिए क्या करोगे, अपने आसपास के लोगों के लिए क्या करोगे? इट्स hell lot of money can be made, growth can be seen, even at a decent speed of 7-8%, we will reach up to a $10 trillion, if not $30 trillion, let's say. But again, देखिए वो चीज़ों तक पहुँचने के लिए मतलब हमने इतना बड़ा जो चेंज देखा ना, what I see is, and 2014 में जो इंडिया ने डिसिसिवली वोटिंग किया ना, that became a turning point for India. डिसिसिव गवर्नमेंट है तो वो अचीव हो जाता है। अब ड्यूरिंग दैट टाइम चलो हम चाहते नहीं है कोई डेट लग जाए, पावर शिफ्ट हो जाए, चेंज हो जाए, सो दैट विल बी समथिंग के शायद वहाँ पे हम थोड़ा लेट पहुँचेंगे। But with the current status quo, we can reach there very easily. Perfect. Now, budget में एक और बहुत ही स्टार्क चीज we saw that fiscal prudence and fiscal discipline जो गवर्नमेंट अचीव करना चाहिए, right? जहाँ पे they are selecting gliding approach for fiscal deficit. At 9% से सीधा we are currently at 4.4%, and the coming year का target is 4.3% of fiscal deficit. So, is it prudent to be fiscally disciplined right now with global instability, जहाँ पे थोड़ा मेरा पर्सनल टेक हो जाता है कि और aggressively defense और geopolitical consolidation of power पे अगर हम फोकस करें, जहाँ पे we can create leverages, जहाँ पे हम टेबल पे बोल सकें that you cannot do whatever you want with us, right? We hold a big leverage. So won't that require aggressive spending rather than being cautious continuity जिसकी हम बात करें? There are two ways to look at it. The first way is what you said, is fiscal prudence, and I belong to this school of thought. हमें बचपन से ही पढ़ाया जाता था कि आमदनी अठन्नी है तो खर्चा उससे कम करो, देखा जाए तो so your income minus your expense is savings. वॉरेन बफेट ने उसको चेंज किया कि your income minus savings is your expense. और मुझे आज ही मेरे कलीग थे, उन्होंने बताया बहुत अच्छी बात बोली कि इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट इज योर एक्सपेंस उसी तरीके से। दिस इज वेरी डीप। तो फिस्कल प्रूडेंस से यार क्या है, एक सस्टेनेबल ग्रोथ होता है। आप let's assume and let's connect this by let's say silver. सिल्वर का यूज जो है यूजेबल कमोडिटी ही था, ऐसा नहीं है कि अचानक से कुछ हुई है। पीपल स्टार्टेड फाइंडिंग आउट अचानक से कि अरे अब तो यूज बढ़ गया, मतलब बिटकॉइन नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, हमेशा से यूज हो ही रहा था। अब ठीक है चलो मान लेते हैं कि भाई बढ़ जाएगा, उसका यूज केस बढ़ गया, लेकिन फ्यूचर में बढ़ेगा ना भाव। तो आज ही कहाँ से कहाँ 1.5 लाख रुपए, मतलब 1,50,000 का हम थोड़े दिन पहले दे रहे थे और अचानक से 4.5 लाख 4,25,000 20,000 कर दिया। अब ये क्यों, ये पंप किया ना, पंप कैसे किया, लिक्विडिटी देके, मेरे भी लिक्विडिटी यूज करके एक्सेस पंप करके, बेसिकली लिक्विडिटी का ये गलत इस्तेमाल। जैसे वो लिक्विडिटी खत्म हुई क्या हुआ, many people must have lost really bad big capital. इसको थोड़ा सा अगर ऑडियंस के लिए एक्सप्लेन करूं, so what happened was people wanted a new investment opportunity and they sought it in gold and silver. Now gold was already too high for them, so they started pumping silvers with a lot of cash and leverage. अब कल ही मेरे किसी से बात हुई थी and they were asking me कि सर अभी सिल्वर क्रैश हुआ है, अब मैं वापस उसको पिक कर लूँ क्या, मैं उठा लूँ क्या? नाउ देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ फ्रेंजी एंड क्या बोल सकते हैं, फोमो कि भाई सिल्वर का एक और आएगा हम एंटर कर लेते हैं।
So this creates a lot of misallocation of capital. करेक्ट Right, जो शायद और प्रोडक्टिव जगह पे या प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स में पार्क हो सकता था rather than betting on a commodity which only has a use case. करेक्ट उसको भी आप लेवरेज से कॉन्ट्रैक्ट्स बाय कर रहे हो फ्यूचर में, doesn't make sense, actually does not give you silver, Right. it wipes out capital. तो हम उसी का डिस्कशन कर रहे थे. सो अब ये एनालॉजी लगाओ अपने इंडियन इकोनॉमी में, हम बोरोइंग्स कर लेते हैं कहीं से भी, पंप कर देते हैं, अब कहीं जाके अगर बस्ट हुआ कुछ अनसस्टेनेबल रहा, कहीं ना कहीं we will be into trouble. What like what we have seen in Zimbabwe, Correct, exactly. Venezuela, we have seen that. We have even seen that in US because her major crisis has been out of US, which has grown like anything. Correct. बहुत unsustainably and now we are struggling very much. Correct. So this is what, मतलब from this perspective, I see कि government is just playing right. Just fine balancing between some financial incentives which are sustainable also in future, sustainable growth, and by creating an environment whereby the private people, by their own manner, by their own lagan, by their own thought process, by their own R&D, makes business out of the country or the economy where it is heading. So it's a very fine balance, I think. Or मतलब I'm not from that background के where basically people can go for a bit higher expenditure and then we fall into trouble. So I see कि government is taking very nice step. देखो actually problem क्या होता है आपको? प्रॉब्लम तो चलिए आप एक बार का ग्रोथ भी कर लेंगे, लेकिन जो प्रॉब्लम होती है ना जब इस तरह के बबल्स में, प्रॉब्लम यहाँ से चालू होती है कि आपको वापस उस जगह तक पहुंचने में जो एफर्ट, टाइम, एनर्जी जो आपकी वेस्ट होनी है वो बहुत बड़ी हो. तो धीरे धीरे चले. अल्टीमेटली कछुआ और रैबिट वाला जो स्टोरी है, स्लो एंड स्टडी विल विन द रेस. दिस एक्चुअली अप्लाइज हियर. So fiscal prudence बहुत ही करेक्ट चीज है आप ये बोल रहे हैं. एंड आई थिंक वो नंबर्स भी दिख रहा है, डेट टू जीडीपी रेशियो की बात करें या फिर क्रेडिट रेटिंग की बात करें, which is improving, which is another great signal compared to the peers. चाहे G7 की बात करें या टॉप 5 इकोनॉमीज की बात करें. देखिए वो नहीं, आई एम सॉरी टू कट यू, लेकिन जो अगर नहीं भी आपको इंप्रूवमेंट दिखे ना, आप ये समझ लीजिएगा कि देयर आर फॉरेन पीपल हु डोंट वांट द क्रेडिट रेटिंग ऑफ इंडियन सोवरियन बॉन्ड टू करेक्ट. So मतलब there are such powers at play. 100%, 110%. आप मेरे को बताओ डेट टू जीडीपी ऑफ अमेरिका, ऑफ जापान एंड vis-a-vis इंडिया, एंड दे अमेरिका तो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, हमसे तो ऑलमोस्ट 7x बड़ी है, 6x बड़ी है इकोनॉमी. तो क्यों उसको अभी भी डबल ही मिल रहा है और इंडिया को जस्ट जंग से ऊपर मिल रहा है, व्हेन द वर्ल्ड इज सीइंग इंडिया एज अ ग्रोथ स्टोरी. So, मतलब ये इससे भी कंफर्म होता है. आई थिंक रिसेंटली अगेन पार्शियल शटडाउन में यूएस गवर्नमेंट वेंट एंड डेट क्राइसिस की हम बात कर रही हैं कि वो बबल जब बर्स्ट होगा देन इट विल बी अ वेरी डेंजरस थिंग फॉर द एंटायर इकोनॉमी एंड द वर्ल्ड एट लार्ज. Okay, so we were talking about leverages, so let us move on to that topic of budget. जहाँ पे बजट में the government recently introduced increased STT on futures and options, right? जिसकी वजह से we saw drastic fall, right? Which did not make sense to a prudent investor or market participant. कि यार STT on futures and options led to a fall of 2.5% and during the day to 3%. इतना डीप फॉल. बट व्हाट इज द इंटेंट या लॉजिक जो गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई वी वांट टू स्टॉप द लॉसेस ऑफ रिटेल सेक्टर. तो द क्वेश्चन हियर इज इंक्रीज एससीटी सिर्फ एक बहाना है टैक्स ज्यादा कलेक्ट करने का और उसके आगे एक रीजन देने का भाई हमें रिटेल लॉसेस को रोकना है, या genuinely this is a way to actually stop retailers from entering the very dangerous waters of future and options? Honestly, I would like to congratulate government on this. Okay. आंकड़े बताते हैं 90% of the traders are not making any profits
out of futures and options. And प्रॉब्लम ये है वो लोग जो लोग ये फ्यूचर ऑप्शन कर रहे हैं वो ये नहीं समझ रहे कि देयर आर कंपनीज लाइक जेन स्ट्रीट जो नासा के साइंटिस्ट को हायर करते हैं, आईआईटीएंस को हायर करते हैं, वो लोग सुपर कंप्यूटर यूज करते हैं अपने अल्गोस के लिए, एंड दीज गाइज, दीज इंडिविजुअल ट्रेडर्स आर बेटिंग अगेंस्ट दोज पीपल जो सुपर कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं, सुपर अल्गोस यूज कर रहे हैं, सुपर मशीन यूज कर रहे हैं। कैसे जीतोगे यार? यू आर ट्राइंग टू फाइट अ वॉर जहां पे सामने वाले के पास तोप है और आप वो प्लास्टिक का मशीन गन लेके खड़े हो। तो गवर्नमेंट किसी को ना तो नहीं बोल सकता ना कि करो ही मत। एक्चुअली अगर आप देखोगे गवर्नमेंट ना तो कैसे बोलेगा किसी आपके पास में आजादी है वो करने की, तो जब आदमी को खुद को सब जब समझ में आएगा तब वो अलग हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखिए गवर्नमेंट मोर, इसमें कोई टैक्स इंसेंटिव नहीं है, इट इज जस्ट दैट गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दी है कि ओनली दोज पीपल हु नो अबाउट फ्यूचर ऑप्शन एंड दे डू इट राइट वे, right algos, like machines, like strategy, only they should remain in the market related to futures and options. I am telling you, मेरे पास में 2-3 दिन पहले ही एक स्टूडेंट आया था। नाउ एक स्टूडेंट वो यहाँ पे आके ये चीज़ को he started crying because he has lost a lot of money of his nana in these options and futures. Similar case last week आया था मेरे पास। तो यार मतलब ये सारी चीजें जो है ये तो हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं। पीपल आर ट्रीटिंग मनी लाइक अ वीडियो गेम। आप पैसा लगाओ, नो, दिस इज सर्टेनली नॉट राइट, इन नॉट राइट डायरेक्शन। और मैं बताऊं, मैं गवर्नमेंट को क्यों कांग्रेचुलेट करता हूँ, इतने प्रेशर के बाद भी, इतना सब बोलने के बाद कि एफआईआई चले जाएंगे, एफडीआई चले जाएंगे, फॉरेन इन्वेस्टर जो बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो लोग चले जाएंगे। लास्ट टाइम भी यही सब बोला, तभी 0 का 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स किया, फिर 10 का 12.5 किया, अभी एसटीटी भी बढ़ा दिया। मतलब कि सिग्नल एकदम क्लियर है बॉस, गवर्नमेंट अपने दम पे आगे बढ़ना चाहिए। और मैं आपको एक्चुअली ये बात बताता हूँ कि जितने भी एफआईआईज हैं मेरे रीडिंग है, आई कैन बी रॉन्ग एंड आई हैव ऑल द राइट टू बी रॉन्ग, लेकिन मेरी जो रीडिंग है एफआईआईज दे आर फेयर वेदर फ्रेंड्स। जहां पे ग्रोथ होगी वहां वो चले जाएंगे, जहां उनका फायदा होगा वहां वो चले जाएंगे। ट्रू, करेक्ट। अगर इंडिया आज सपोज 7% पे ग्रो कर रहा है, कल अगर उनको 10% की जीडीपी दिखने लग गई, दे वुड कम बैक। और ये अल्टीमेटली दिस इज काइंड ऑफ, यू कैन से, आई वुड नॉट से कि दिस इज कंप्लीटली स्पेकुलेटिव मनी, क्योंकि ठीक है कुछ कंपनीज में से मतलब जो पी इन्वेस्टर्स हैं या जो वीसी इन्वेस्टर्स हैं, जो सीड फंडर्स हैं, उनको एग्जिट मिलता है मार्केट से, लेकिन दैट मार्केट इज मोर अब मैच्योर। इंडियन डीआईआईज, इंडियन रिटेलर्स आर टेकिंग केयर ऑफ दैट मार्केट, राइट? Yes, we can see that. Just last year, this fiscal year, they pulled out 1.6 lakh crore rupees out of Indian equities. Right. But the impact it should have on the prices, it did not materialize because it was backed by Indian liquidity. Correct. The domestic liquidity. मैं आपको एक्चुअली बता रहा हूँ कि अगर आपको रियल एफआईआई मतलब फॉरेन मनी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखना है, लुक एट फ्रॉम एफडीआई पर्सपेक्टिव। नाउ व्हेन एफडीआई कम्स टू अ कंट्री, it is not coming for a year, for 2, for 3, for 4, it is coming for decades. Correct. यहाँ पे खाली थोड़ा सा मैं बता दूँ, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो इंडियन बिजनेसेस में मनी इन्वेस्ट करते हैं, they buy Indian stocks. And foreign direct investors directly set up their businesses. They invest in land, labor, capital in India and grow businesses. Right. So that shifting of manufacturing. So वो लोग से पैसा नहीं लेके आए, वो यहाँ पे आके बिजनेस कर रहे हैं, जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, द मल्टीप्लायर ऑफ द इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, अपनी टेक्नोलॉजी लेके आए हैं। तो एफआईआई क्या टेक्नोलॉजी लेके आए?
True. So I'm not saying that they are not important. They are not important for Indian economy. Yes, they are important and they are important for stock market players also. But यार हर चीज को सिर्फ हम अपने बेनिफिट के लिए देखें वो भी गलत है. जो सही है वो देखना चाहिए. It is not like if they are going out, it is not कि Indian economy structurally कुछ गलत है. बिल्कुल. Right, because the other aspects do cover that, चाहे DII push हो या FDI हो, because continuously we can see that the numbers say कि our forex reserves has crossed $700 billion. तो पैसा आ तो रही है, dollars Yes. are coming in, Of but course. from the other route. Yes. And that is actually more important. That is going to remain here for years. And technologically advancement जो होगा वो अलग होगा. Correct. Job creation, technology and value creation in the Yes. will be there. Perfect. So moving on, एक जो मुझे थोड़ा सा हमेशा से एक लगता है being an economics teacher, जो मुझे कमी दिखती है इकोनॉमी में, कि all numbers presented in the economic survey and everywhere are great. Right? The government has the right intent, but the classic problem that India faces is कि आज भी after 12 years of making India, we still have only 14% contribution coming from the manufacturing sector. One. Second, जो मुझे लगता है बहुत बड़ा इशू है, is that our population is still 40 to 44% indulged in primary sector, where the GDP contribution is merely 16%. Correct. So ये जो skewed data point है employment versus GDP growth, ये थोड़ा सा वही सम है. But do you think the current trajectory में ये change होगा, या we can bet on service growth and we can achieve 30 trillion just on the back of service driven economic growth? नहीं, देखिए engines को सारे चलाने पड़ेंगे. इकोनॉमिक ग्रोथ को अगर अचीव करना है तो engines को सारे चलाने चाहिए. Manufacturing is definitely a very big element and a pain point. So देखिए अगेन मैन्युफैक्चरिंग लाने के लिए गवर्नमेंट ने जो काम बनाया है, जो प्रावधान बनाए हैं, या जो ऑर्गेनाइजिंग जो स्कीम्स बना रही, दे आर इन राइट डायरेक्शन. बट देखिए ये सारी चीज़ें ना, इट टेक्स एक्चुअली लॉट ऑफ टाइम टू हैपन एक्चुअली ऑन ग्राउंड. ठीक है, बहुत लोग पॉलिटिकली जो मोटिवेटेड होते हैं, बहुत लोग बोलते हैं ड्यूरिंग द ऑफ डेज मोदी जी जस्ट फ्लाइज आउट एंड वहाँ पे जाके वो रोज बाहर ही रहते हैं, रोज फॉरेन कंट्री में रहते हैं. मैं आपको बताऊँ, इंडियन इकोनॉमी को इस प्रधानमंत्री ने सबसे हार्ड सेल किया है. देयर वाज नो दूसरे कोई प्रधानमंत्री है. टू बी ऑनेस्ट, देखिए मेरा कोई बहुत बड़ी मेरी एज नहीं है, लेकिन मैंने ये दूसरों से सीखा, दूसरों से समझा वो कैसे करते थे, क्या करते थे, कुछ इंफॉर्मेशन दूसरी जगह से मिली और उसके बेसिस पे मैंने अपना ये ओपिनियन बनाया. मोदी जी हैज ट्राई टू सेल द इंडियन स्टोरी इन द बेस्ट वे एवर. सो वो जब बाहर जाते हैं, वो जब बाहर जाके ही इज टॉकिंग टू द who's who of the world. He is talking to Google CEO, he is talking to Microsoft CEO, and you can see and you can feel that they are gaining more and more confidence in Indian economy. तो जैसे जैसे ये confidence develop होगा ना, ये shift जो है ये आप actually देखोगे. You cannot expect from a democracy of the size of like India, जहाँ पे पहले इकोनॉमिक प्रॉब्लम से गुजरो, फिर पॉपुलेशन से गुजरो, फिर स्टेट्स प्रॉब्लम से, फेडरलिज्म से गुजरो, फिर रिमोटली जो प्रॉब्लम्स है, लैंड एक्विजिशन और इतने सारे एक्ट, और मतलब कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है. यहाँ पे वी कैन नॉट एक्सपेक्ट चाइना लाइक ग्रोथ, जहाँ पे द स्टेट डिसाइड्स एवरीथिंग एंड यू हैव टू जस्ट फॉलो. तो देखो डेमोक्रेसी और कहीं ना कहीं कम्युनिज्म में तो ये डिफरेंस रहेगा. लेकिन आई एग्री टू योर पॉइंट, जितना हो सकता था उतना नहीं बढ़े, लेकिन हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं, आई थिंक फोकस उस पे रहना चाहिए. देखिए, सो देयर आर टू थिंग्स. वन इज, देखिए आप कहीं पे भी जब पैसा लगाते हो तो आप दो चीजें देखोगे कि
पहला आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो सेफ है क्या, और दूसरा जो आपका आप जिस चीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो इन्वेस्टमेंट ट्रस्टेबल है क्या। अगर ये दो चीज है तो ग्रेजुअली यू विल हैव द फ्रूट्स ऑन अ पॉजिटिव साइड। अगर ये दोनों चीजें गवर्नमेंट कर लेती है तो आपका जो मैन्युफैक्चरिंग में जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, मुझे लगता है कि वो प्रॉब्लम हम जो देख रहे हैं अभी, दोज नंबर्स विल चेंज एंड चेंज इन अ बिगर वे। करेक्ट। और इसीलिए एक्चुअली अगर आप आज भी देखो कि हर आदमी सब ग्लोबल सप्लाई चेन इन सब की बातें क्यों कर रहा है। एप्पल इंडिया को क्यों चूज किया एप्पल ने अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस शिफ्ट करने के लिए, बिकॉज समथिंग इज हैपनिंग राइट। अच्छा, एप्पल जैसी कंपनी अगर इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग कर लेती है तो बाकी कंपनीज को भी उतना ही इंसेंटिव मिलेगा। They will also feel motivated, they will also feel safe, they will also trust what the government of India says. तो ये जो चीजें हैं ना, it will have long term impact. इसीलिए generally we always aspire for long term investing. करेक्ट। सो वही बात हो गई कि मैन्युफैक्चरिंग का वेटेज बढ़ेगा, राइट? द पॉलिसीज आर इन द राइट डायरेक्शन, बट इट विल टेक टाइम बिकॉज इट इज अगेन कैपिटल ओरिएंटेड या केपेक्स हैवी होता है, राइट? तो द फर्स्ट द गवर्नमेंट विल टेक द इनिशिएटिव एंड द प्राइवेट में बड़े प्लेयर्स विल कम एंड देन द एमएसएमई एंड द ऑल द स्मॉल प्लेयर्स विल एंटर द पिक्चर, राइट? परफेक्ट। ऑलराइट, सो हमने एक वाइड परव्यू से बजट डिकोड कर लिया है, बट एक फाइनल क्वेश्चन जो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि दैट इफ यू वर अ 21 ईयर ओल्ड इन टुडेज इंडिया, right, with a base capital, how would you choose your journey? एक ये एस्पेक्ट है। एंड सेकेंड, व्हाट डू यू थिंक आर दी सनराइज सेक्टर्स जो शायद $30 ट्रिलियन बाय 2027 को बहुत जल्दी अचीव करने में हेल्प करें? सो अ 2-part क्वेश्चन। ओके, सो टू बी ऑनेस्ट डिफिकल्ट वन, बिकॉज यहाँ पे अपॉर्चुनिटी साइज इतना बड़ा है, लेकिन चलो आई वॉन्ट टू गिव लेट्स से 2 if I want to pick 2 and if I have the capability of doing that. Okay. So being from city of Surat, textiles are what I am looking for, and if I would have invested in textiles, दो रीजन है। पहला, गवर्नमेंट ने इस बार भी, बिकॉज टेक्सटाइल इज अ वेरी बिग एम्प्लॉयमेंट जनरेटर, करेक्ट, ठीक है, तो बीइंग एन एम्प्लॉयमेंट जनरेटर गवर्नमेंट ने काफी अच्छे से उसके ऊपर अपना फोकस किया है। और सिर्फ इसी बजट में नहीं, पिछले 2 बजट्स में भी टेक्सटाइल पार्क्स बनाना, स्कीम्स बनाना, टफ स्कीम्स बनाना, PLIs देना, ये सारी चीज गवर्नमेंट बहुत अच्छे से कर रही है। लेकिन जो मेरा व्यू पॉइंट आ रहा है, जो गवर्नमेंट ने अपने बजट में दिया वो तो एक चीज है ही, बट जो पिछले वीक, एक्चुअली पिछले वैसे तो 3 सालों में, लेकिन लेट्स से पिछले वीक जो यूरोपियन यूनियन के साथ जो FTA हुआ, आई एम टेलिंग यू दैट इज गोइंग टू चेंज द लैंडस्केप ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स, स्पेसिफिकली टेक्सटाइल्स। Yes. The total opportunity size, if I say, is 22 lakh crores. और I'm telling you, बांग्लादेश, which is इंडिया के कंपैरिजन में बांग्लादेश को रख लो, and you will see के what are the differences. Bangladesh is single-handedly able to capture $700 billion of exports to In European textiles. Union in textiles. Now, why it was able to do? Because Bangladesh being a underdeveloped country, it had some privileges whereby European unions did not put any tariffs on their goods. Okay. Now with this EU deal, that benefit will again be given to India also. Very true. And the kind of देखिए, इसके लिए करना क्या होगा, आपके व्यूअर्स ज्यादातर सूरत वाले रहेंगे, तो 3-4 चीजें आप लोगों को करनी पड़ेगी। द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इज you have to have factories which are
of European standards, of American standards. ओके, तो You- टेक्नोलॉजी वैसी होनी चाहिए. Technology, yes. Secondly, you have to have your inclination to make better goods of better quality. सिर्फ सस्ता नहीं भाई, सबसे अच्छा, करेक्ट. वो वाला माइंडसेट लेके आना पड़ेगा. So we need to go back to the roots of Indian handicrafts and textiles. में जो Yes. था. So the Indian standards, the original Indian standard. एंड अगर ये दोनों चीज आप लोगों ने यू बी रेडी फॉर योर यूरोपियन मार्केट्स, योर यूरोपियन मार्केट कैप्चरिंग. सो आई वुड डेफिनेटली बेट ऑन दिस Okay. first and foremost. Secondly, if I wanted to invest, and look, we are stock market investors, so हम खुद ज्यादा काम नहीं भी करें तो we play it by investing in those companies which are into the similar kind of Similar industries, business. right? डेटा सेंटर को जो ये 25 इयर्स का 2047 तक का जो टैक्स फ्री किया है, दिस इज गोइंग टू चेंज द वे इंडियन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इज, और मैसिव अपॉर्चुनिटी आने वाली है. आई एम टेलिंग यू, अपने ने पहले भी बात की, $5 ट्रिलियन इज बीइंग स्पेंट बाय यूएस इकोनॉमी, In by AI US government in infrastructure. AI. So we can imagine किस तरह का पैसा आने वाला है. Correct. तो these will be the two definite sectors where we will be placing ourselves in the near future. Perfect. Perfect. Thank you so much, sir. बहुत अच्छा insight हमें मिला on the budget and the policy landscape of the nation going ahead. And we can say, I think बहुत safely हम ये बोल सकते हैं that it was an unremarkable budget for those who want freebies and for those who wanted something कि भाई बस बैठे बैठे हो जाए. But it was a very remarkable budget when it comes to long-term strengthening of the economy. Absolutely. So thank you so much, sir, for joining us today. Thank you. And I really look forward for, I came to know about this Avsar, and when we were speaking also, and I am really amazed by the kind of energy that you bring in all your your podcast. And this Avsar is actually a very big opportunity for people like us or like you who are giving it back without any condition supply. So congratulations for that, Thank you. Thank you. and so much. we look forward for more Avsars. बिल्कुल बिल्कुल. And we'll again बहुत जल्दी अपने फिर से बैठेंगे एक और कॉन्वर्जेशन करने के लिए. Sure, sure, Soon. sure. Thank Sure. you. Thank you. Thank you.